guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. Today I have with me Rabia Ahmed, who owns a small home-based food service called Basil Pantry. Home-based, yeah, na? Right? And the crux of their business is that they provide meals that are healthy, that can be provided to people who have medical issues like diabetes, PCOS. They do keto diets, low calorie diets. So for that we have Rabia Ahmed, but that is just her business. There's a whole story, an entire journey behind that, which basically leads up to this point, and we're more interested in talking about that. Hi, how are you? Very well, Hamna. Thank you for inviting me to your podcast, and it's a pleasure being here. Thank you so much. No, thank you for coming. I've been wanting to have you for quite a while. Finally, wo ho gaya. There was always something or the other. So this season mein when it started, when we were deciding our guests, I said, please put this name in. We have to have her. So in the start, like, you were there and we contacted you. So we like to really dig deep into our, stories. And so I'd like to know, where were you born? What was your early life like? Kahan se aap belong karte hain? I was born in Bahrain. I'm the youngest among my siblings. And I was the baby of the family, basically. And I did my early schooling and my early childhood till grade, I think, 6th. I was in Bahrain. Acha. Then my father and my family, we moved to Karachi. And then I got my schooling, my college, everything was in Karachi. I got married in Karachi. And I moved to Islamabad 6 years ago. Now it's not very recent, but yeah, 6 years ago. Yeah, okay. So why did you move to Karachi? Aapke father ki job change hui thi? Yeah, because of that. Acha. And then most of our family was in Karachi. So Karachi was our home. So Bahrain was you can call it a transitional period, my parents wanted to make money or whatever. तो वो उसके बाद फिर सारा मेरा सब कराची में ही. Acha. So you belong to Karachi, basically. I belong to Karachi. Achha. Karachi is my city. So what was it like growing up in Karachi? What do you have to say about that? आपने education कहाँ से हासिल की थी कराची में? Karachi में I used to go to the school called DHA school and DHA college, and then I did my ACCA from CAMS. So basically all my education was in Karachi. Acha. And when you were growing up, when you decided to do ACCA, what was it that you wanted to become? ACCA तो इसलिए किया था कि फ्रेंड्स कर रहे थे. अच्छा. कोई शौक नहीं था. अच्छा. सिर्फ ये था कि अच्छा, my father said कि अच्छा, I was always very creative and I wanted to go to somewhere like Indus Valley and artistic. Yeah, I was शुरू से. So but my father said क्या करोगी, इतना महंगा कोर्स है. मैंने कहा अच्छा ACCA कर लेती हूँ, सब कर रहे हैं. He's like अच्छा कर लो. So उस चक्कर में कर लिया था, and then बीच में I got married very young, so I finished my studies after I got married. अच्छा. Yeah. So during your studies you got married. So why did you get married so young? बहुत शौक था शादी का. And by young you mean how old? I turned 20. अच्छा. जब मेरी शादी हुई, like exact, शादी पर बस 20 की होने ही वाली थी. अच्छा. उसके बाद हुई थी. So that 19, 20. So that's very young. That's very young. हाँ. अच्छा. So आपको शौक था, like you were not pushed into by your family or anything? मुझे बहुत शौक था. मुझे था कपड़े बनेंगे, जूलरी मिलेगी, like इतना मजा आएगा. So वो जो wedding, the idea of a wedding was. The idea of wedding was there. हाँ. Was very appealing. जो पहला बंदा से मुझे propose किया, I'm like हाँ बिल्कुल, वो बंदा भी अच्छा था, but I was like हाँ कर लो फौरन कर लो. And because I was the youngest and मेरे पेरेंट्स को भी शायद था कि अच्छा हो रही है तो चलो अच्छा है, हो जाए. हाँ, I mean parents को तो खुशी होती है when they know that the children are. मुझे बहुत शौक था, दुल्हन बनने का शौक था. तो फिर आपने enjoy किया वो? हाँ, वो टाइम किया, but now I realize कि अगर if I can turn back time, so I won't do that because बन ही जाते हो. देखो उस वक्त एक होता है, but now this like something different. After 20 years, it's very easy for me to say कि हाँ, उस वक्त I was thinking like a 19-year-old. Now I'm thinking my age. But I feel कि if I could turn back time, I would have finished my education. I wouldn't have gotten married so early because you're just a kid. My own son is 16 now, and 4 years में उसकी शादी कर दूँ. I can't even imagine. Doesn't make sense to you now. Yeah. So that's the thing. So I would focus on my education or even whatever I wanted to do. Maybe चलो मैं इसी से कर लेती हूँ. उसके बाद अगर मुझे इंडस जाना होता, कहीं भी जाना होता, I would have done that. And then शादी तो हो जाती है, नहीं भी हो तो भी
ज़िंदगी चलती है. अच्छा, so you wanted to go into a creative or art school, right? Always, हाँ. always. But what did you think कि what your career would be, or did you ever think that you would be a woman with a career? या आपके जहन में हमेशा एक होता था विलन बनना था, मुझे घर बैठना था. कि बस हाउसवाइफ और हाँ stay at home हालांकि I mom. was ironically I've been working since the age of 16. Like, you know, always अच्छा. I've been doing internships. अच्छा. कुछ ना कुछ. Even when I was like 7-8 तो मैंने अपने घर में लाइब्रेरी खोल ली थी. I didn't know at that time कि मेरे में ये you know ये वाली चीज़ है. So because I loved reading तो मैं क्या करती थी. अच्छा, बुक्स महंगी आती हैं. सो व्हाट वी डिड कि हमारा बड़ा अच्छा कंपाउंड था. हमने एक नेबरहुड लाइब्रेरी मैंने बना ली थी. एंड आई वुड से अच्छा ठीक है 10 रुपये में बुक, यू नो, यू कैन कम एंड रीड इन एक्सचेंज. तो उस वक्त से था. देन व्हेन आई वाज 15-16 आई स्टार्ट डूइंग माय इंटर्नशिप्स. So when I got married, so I was teaching in my own college, अच्छा. junior school. अच्छा. So I've been working all my life. तो ऐसा नहीं है. ख्वाब शौक बहुत था कि ना करूं. बट उस वक्त भी ज़रूरत नहीं. आई थिंक वो होता है आपके अंदर, इनबिल्ट होता है. अभी आई वाज टेलिंग समवन yesterday कि कोई मुझे बोले ना घर बैठ जाओ तो आई कांट. Because even if I have the money, I can't. I think some people who are entrepreneurs, yes, they are at their core entrepreneurs. Yeah. It goes you if don't they realize that. Yes, but if now you I realize कि मैं तो 7 साल की उम्र में भी कभी केक बेच रही होती थी. I remember मेरे घर के पास ना संडे बाजार टाइप एक लगता था. मैं वहाँ स्टॉल लगा लेती थी. तो अब मुझे होता है कि शायद ये शुरू से था. हाँ समझ नहीं आता. अंदर होता है आपके. और पता है इफ पीपल who are like that on the inside and they don't actually do it, they're not happy because it goes against their core. I was never happy teaching. I was never happy doing ACA. Though I did well, I did it in one go. Except जब मेरी शादी के टाइम पे जो पेपर्स थे वो मैंने एक दफ़ा like you know मुझे 2 दफ़ा लगा. But otherwise पूरा 1 go में मैंने किया है. अच्छा. लेकिन I was never happy. I hated accounting. Even now I'm so bad at accounts. It's funny. People in my office say आपने वाकई किया है, आप झूठ बोलती हैं. हाँ. You know बहुत बुरी है मेरी अकाउंटिंग. क्योंकि दिल से नहीं की थी. हाँ बस कर ली थी क्योंकि सब कर रहे थे. हाँ सब कर रहे थे, बस कर ली. हाँ ठीक और है. अच्छा लगता है ना. अच्छा एसी से क्या एक अच्छी. सो ये भी आपकी डिसीजन थी कि एसीसी के बीच में शादी कर लो. एंड डिड यू वांट टू देन क्विट कि अच्छा शादी कर लिया मैं इसको कंप्लीट क्यों करूं? नहीं करना पड़ेगा. जबरदस्ती. ही इनकरेज्ड यू. व्हाई सो? क्या वो कहते थे No, कि he क्यों? was like कि भाई you should finish your education. Everybody was very educated in their family and he was like कि तुम जाहिल रह जाओगी. People fun of you and I'm really thankful to him today. Because again I'm saying 19-20 is a kid. You know, you see at 19-year-olds, 20-year-olds today, they are kids. So then he made you do it and finish वो it. भी कोई बहुत शौक से मैंने नहीं किया था. फिर ये भी था कि you know कि if I get bad grades or anything, it'll be very embarrassing in my ससुराल. हाँ. So फिर मेहनत की. हाँ फिर मेहनत की. हाँ तो आपके ससुराल वाले like how were they supportive of this thing? Obviously it came from your husband, Yeah, but they still. were oblivious. They अच्छा. wouldn't care. अच्छा. And as long you know whatever my duties or responsibilities were there, हाँ. as long as I was fulfilling them, they were okay with it. हाँ. And they were like, as I told you, they were very well educated. My own mother-in-law had done double master, so they were all for it. ऐसा कोई वो नहीं था. But yeah, my husband did support me. अच्छा. And was your mother a working woman? Yeah, was she not? No, she used to teach while she was in Bahrain. अच्छा. But then she left. But yeah, then my sister has been a working woman all her life. So I had good examples. हाँ आई थिंक वही होता है ना कि इफ़ यू जो आपकी रोल मॉडल्स होती हैं जो वो करती हैं नॉर्मली वो आपके लिए नॉर्मल होता है. Yeah, कि दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी सॉर्ट ऑफ डूइंग राइट. Yeah, like my son feels कि सबकी अम्मियाँ ऐसे ही करती होंगी, सब काम पे जाती होंगी. और, you know, so that's his normal. That's his normal. Yeah, that makes sense. So आपने अपना ACCA finish किया. Then did you do कोई job after Then शादी and ACCA? I was teaching ACCA still. junior students अच्छा. at that time. अच्छा. And I kept on teaching till I didn't have my son immediately. I got married in 2002, which is like more than a decade Yeah, now. long time ago. And then when I was expecting my son in 2005, so that time I quit working. Or as soon as he started play school, I started working again in 2007. Which was again teaching. अच्छा, I was teaching. teaching because it suited me, na. Again, I was not very happy, but it suited my routine, my son's routine, flexible hours होते हैं,
तो and you get to do something basically हाँ. every morning. So what was the reason? That was the reason that कि कुछ तो कर हूँ. हाँ, Was that कुछ why you were घर doing में नहीं teaching? बैठ सकती थी कभी भी. कभी भी मैं घर में नहीं बैठ सकती थी. वो मेरा इशू था. हाँ. So you then did. Yeah, but उस वक्त भी I loved cooking. I was very, as I told you, I was very creative. I used to do birthdays. मैं कुछ ना कुछ कर रही होती थी. कभी मैं events कर रही होती थी. कभी मैं जब अपने बेटे की first birthday की, उसके बाद सबने कहा हमारी भी करना शुरू कर दो. start doing that. तो वो मुझ में अंदर से हमेशा. हाँ. Even like Basil Pantry में अभी like it's very aesthetic. Like the way that you design your. I have a problem. हाँ. You have that natural sense of aesthetic. जो कि फिर आपकी उस सारी चीज़ में reflect होती है. I believe you eat food from your eyes first. If it's beautiful, you'll be like, भले खाने में थोड़ा बहुत वो भी हो जाए, but और आजकल तो everything has to be Instagram पर. हाँ, like visual experience food का matter करता है. हाँ, makes sense. अच्छा, so शादी हुआ. Then what happened after that? How did you end up? Then, then my husband became really unwell. My husband was very young when he passed away, as most of people know. He passed away when he was just 39. He was about to turn 40 that year. And I was also very young. तो उस वक्त जो illness का टाइम था ना, वो बहुत मेरे लिए crazy time period था. How long was that? The main illness was like, almost 1.5 years. But जो उसका 6 months थे, तो that was तो almost, I lived in Aga Khan Hospital in Karachi at that time. So that was one of the most difficult times. And उस वक्त अगर कोई मुझे कहता ना कि आज बेज़िल होगा, मैं बोलती कि मैं यकीन ही नहीं कर सकती थी. बिकॉज उस वक्त मुझे सिर्फ ये दिख रहा था. उस वक्त माई ओनली प्रेयर वॉज, एंड it's so ironic, you love the person but you're praying, you want him to be alive because he's a provider as well. That's a very practical aspect. जो लोग मोहब्बत में तो सही सी बात है, लेकिन क्योंकि मैं टीच करती थी, मेरे इनकम से घर नहीं चलता था. तो मुझे होता था कि अगर ये बेड रिडन हो गया क्या होगा, अगर खुदा ना खास्ता आई हैव अ सन, हम किस तरह से करेंगे, सस्टेन कैसे करेंगे. मैं तो फुल टाइम काम नहीं करती हूँ. मैंने पहले भी बताया था एक दफ़ा कि हिज डॉक्टर ही इज़ ट्राइंग टू प्रेप मी. सो वन डे ही कॉल्ड मी इनटू हिज ऑफिस एंड आई सेड अच्छा ये कब डिस्चार्ज होगा एंड व्हाट विल हैपन. सो ही सेड कि देखो डिस्चार्ज होगा नहीं होगा. ही न्यू कि मेरी फैमिली इस्लामाबाद में है. माई पेरेंट्स दे मूव टू इस्लामाबाद इन 2014. वो भी बताऊंगी. बट ही न्यू कि मेरे वहाँ पे, एंड माई मदर इन लॉ हैड पास्ड अवे ड्यूरिंग दैट टाइम. अच्छा. सो मेरे पास कोई obviously my father-in-law couldn't take care of the baby and yes stuff. of course. So my son was 7-8 at that time. So he said go to Islamabad, get a nurse and start working because you'll have to be the bread earner. And I was so upset. I was like, how can he say that to me? I still remember that cold room and I still remember his expression and I was like, क्या बकवास कर रहे हैं, कैसे हो सकता है. अब मैं आज उनको कहती हूँ कि वो मुझे उस वक्त प्रेप कर रहे थे and I could never believe कि I can be the bread earner, forget about Basil. अच्छा, मुझे फिर ये होता था कि पता नहीं क्या कह रहे हैं. और उस टाइम पे he actually passed away. I had to move to Islamabad at that time and initially तो I started working in my son's school. एंड आई मूव टू इस्लामाबाद इन 2015. तो 16, 17, 18 तक मैं बल्कि 20 में मैंने रिज़ाइन किया है. बट उससे पहले आई वॉज वर्किंग इन अ स्कूल, इन माई सन स्कूल. एंड वन ऑफ द मेन रीजंस वाज बिकॉज हिज फी वाज टेकन केयर ऑफ. हाँ, तो ये फ़ायदा होता है. हाँ, ये फ़ायदा होता है और आपको फिर एक एक फ़ायदा देखना पड़ता है. Yeah, of course. Yeah. And also like आपकी प्रायोरिटीज बिल्कुल चेंज हो जाती हैं. For you then it's your son. और जब आपके पास अल्लाह ना करे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना भी हो ना, अगर फाइनेंशियल थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आती है तो जो लोग कहते हैं ना प्यार मोहब्बत वाकई आपको भूल जाता है. उस वक्त आपको प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है क्योंकि रोटी होगी पेट में, स्कूल के पैसे होंगे तो आप सोचेंगे कि मैं परेशान हूँ ना. अब आपकी परेशानी ही चेंज हो जाती है. हाँ, it's about survival. It's about survival. Yes. And then grief comes later because grief is there but you don't have time for the grief. Yes. It is very much there. That doesn't go anywhere. And then जब आप थोड़ा सा वो होते हो ना, जब आप सेटल होते हो फिर आपको ख्याल आता है कि अच्छा you start missing the companionship, you start missing your companion. उस वक्त तो आपको सिर्फ एक दिख रहा होता है, एक टनल दिख रहा होता है and you can't see any light through it and you have to force yourself to
जो भी है कि आपको एक लाइट देखनी होती है। और मैं कह रही हूँ अभी मजाक में कह रही थी कि आई वुड लव टू बी अ हाउस वाइफ। तो मैं पढ़ाती थी, बट आई वॉज अ बिग वी हाउस वाइफ, कि मेरी हर चीज़ हो रही it was होती just थी। a thing you were doing on the side, Because I wanted to do. it was not ever a financial responsibility or something that you मतलब needed to do. सैलरी से फर्क नहीं पड़ता था उस घर के हाउस होल्ड इनकम। Yeah, it wasn't like a contribution. It was just something that you were doing for yourself. Exactly. So थोड़ा सा rewind करूँ अगर मैं, because a lot of people, one of the things that I like to do from this platform is कि बहुत सारी चीज़ें के साथ हम लोग रिलेट तो नहीं कर सकते, इन द सेंस कि वो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ नहीं हुए होते, ठीक है। बट सबके एक अलग अलग, आई बिलीव कुछ ना everyone कुछ has their own journey. Yes. And maybe your problem would not be a very big problem for me, but for you at that point of time, it is a problem. Yes, yes. So my problem might not be your problem, but for me, it's a big problem. Maybe it's very minute, but हर किसी की अपनी एक होती है. And I can sort of relate to yours because my father also passed away. Like he had cancer, he passed away, Ammi was widowed, and then उनकी जो struggle थी and everything that she did. और वो support चाहिए होती है, even mothers को support चाहिए होती है, Yes. बच्चों की support चाहिए होती है. At times it's so funny. और मैं किसी को बोलूँगी, कोई बोलेगा कैसी माँ है, आई रन बेजल पैंट्री, आई मेक फूड डे इन डे आउट. ही कॉल्स मी लाइक खाने में क्या, लाइक कुछ नहीं, किचन से भिजवा दूँ, लाइक नहीं मुझे नहीं खाना, लाइक अच्छा मेक योर सेल्फ सैंडविच, नहीं लाइक अच्छा ठीक है. सो फॉर मी इवन दैट्स अ सपोर्ट. Yeah, that he's making that easier for you. Yeah, because हालांकि मेरे तो बेजल में तो खाने का मसला ही नहीं चाहिए, but sometimes you don't want to eat from the kitchen. Yeah. I can't eat my own food. Yeah. I get sick and tired. Of it, के हाँ, makes sense. So basically I was saying कि होता है, but a lot of times, but we know a lot of people who have been through similar experiences even if we've not. So one thing I like to do here is dig deep into how that was, ताकि जो लोग इस तरह के लोगों को जानते हैं वो उनके साथ फ्यूचर में एम्पथाइज कर सकें कि अच्छा दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन हैज़ बिन थ्रू. और बिकॉज मैंने अपनी अम्मी को देखा और हमारी फैमिली के क्या डायनामिक्स थे उसके बाद, एंड मैंने वो टाइम देखा कि व्हेन माय फादर वाज इल, तो वो एक अलग स्ट्रगल थी जो केयर गिवर की स्ट्रगल होती है. सो कैन यू गिव मी अ लिटिल insight on that कि how that time was during his illness for you, because वो बहुत mentally physically taxing और stressful time होता है. I wouldn't want even my worst enemy to go through that time. I know. वो जो time होता है ना, I used to look for a normal कि मेरा normal क्या होगा. Every day I had to take him to the hospital. Every day he had a heart condition जिसके अंदर ना body में पानी retain करती है. अच्छा. And during his end few months तो हुआ ये था कि आपको साइकोलॉजिकली भी एक जवान आदमी जो इतना बीमार हो और जो इतना इंडिपेंडेंट हो और इतनी अच्छी पोजीशन पे और एकदम से वो इस तरह से हो जाए, तो साइकोलॉजिकली भी बहुत अफेक्ट होता है. ठीक है. सो ही वाज गोइंग फॉर थेरेपी एंड एवरीथिंग. सो व्हाट हैपेंड, द डॉक्टर सेड ही कैन नॉट ड्रिंक वाटर. दैट वाज वन ऑफ हिज बिगेस्ट फियर्स बिकॉज हिज मदर वाज अ डायलिसिस पेशेंट एंड ड्यूरिंग हर एंड डेज शी वाज नॉट एबल टू ड्रिंक वाटर. और कितनी बेसिक चीज़ है पानी पीना, हम सोचते भी नहीं हैं. मतलब दिन में 4 ग्लास पियो, 8 ग्लास पियो, एंड ही कुडंट ड्रिंक मोर देन 2 glasses. एंड द मेडिकेशन ही वाज ऑन, तो उस पर आपको पानी की प्यास लगती है. हाँ, ड्राइनेस हो जाती. हाँ, आई नो, ड्राइनेस ऑफ माउथ. उस पर होता था कि ही वुड ड्रिंक वाटर एंड देन आई हैड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल बिकॉज फिर इंजेक्शंस लगते थे, पानी निकलता था और वो रास्ते से और पीते हुए आता था. एंड माई 7-year-old son, he used to hide his water bottles के बाबा नहीं पी ले. We used to like हमने वाटर कूलर का सब हटा दिया था कि पानी की फ्रिज में हम पानी नहीं रखते थे. कराची में कितनी गर्मी होती है कि रखेंगे तो उसका दिल चाहेगा. हम छुपा के अपना पानी भी रखते थे. माई 8-year-old kid didn't used to drink water के I can't keep it in the fridge. अपनी बॉटल अलग कबर्ड में रखता था. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती थी जिसमें मैं नॉर्मल ढूंढती थी कि यार एक दिन ऐसा हो कि मुझे हॉस्पिटल ना जाना हो, एक दिन हो एवरी डे पोटाशियम चेक हो रहा है, ये हो रहा है कि एवरी डे यू वुड कॉल द लैब एंड यू वुड बी लाइक अच्छा सही हो. आधा डॉक्टर, आई एम श्योर यू कैन रिलेट इवन विद योर मदर, कि आप आधा डॉक्टर बन जाते हैं. ट्रू. बिकॉज आप हर चीज़ का ख्याल रख रहे होते हैं. और उस वक्त एंड द फनी थिंग इज़ कि मैंने कभी सोचा नहीं ही वोंट बी देयर. हालांकि इतना ज़्यादा ही वाज लाइक सिक, बट ऑल आई वाज थिंकिंग हाउ कैन ही फील बेटर, यू नो व्हाट आई कैन डू टू मेक हिम be more at ease right now. More at ease. So वो था वो वाला पीरियड. तो and when he passed away, so part of me was relieved.
मतलब it's a very sad thing to say, but he was in so much pain and so much agony, and I loved him a lot. So I couldn't see him that way. और उससे पहले मैं यही कहती थी कि no, he has to be here, he has to be there. But 2 days before his death, I actually told him, I said, I'll let go of you and I'll take care of myself and child, and it's okay. I can't see you in this much pain. And I thought that was the thing that was, वो तो अल्लाह ने वक्त लिखा है, लेकिन एक चीज़ होती है ना, आप अपने आप को भी रोक रहे होते हैं. सो वो टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट. हाँ, आई नो, आई कम्प्लीटली गेट दैट. क्योंकि मेरे अब्बू की पासिंग वे से हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ मांगी थी कि वो बहुत पेन में है, तो अगर उनके लिए बेहतर है तो हो लेने दें. एंड यू नो लाइक इट्स, you can't see the person, like you can't see a 39-year-old guy in diapers. You can't. Yes, it's it's a lot. It's like, and especially जब आपने उनको उनके बेस्ट और थ्राइविंग मोड पे देखा हो, and then watching them deteriorate to that, you're just like, no, they don't deserve this life. And that's not life. That's not life, and they don't deserve that kind of life. You're like, you know, better to not live this life. I pray for even myself, even my kid, कि चलते हाथ पाँव सेहत के साथ अल्लाह ताला इज़्ज़त के साथ करते. No one deserves that. हाँ, no one deserves that. Yeah. So वो होता तो है for the but जो caregivers गिवर्स पे जो गुजरती है, and I'm sure like of course your son was also watching all this happen, and during this time you don't just have to look after your, like you said, your mother-in-law wasn't even there. So you didn't just have to look after your husband, but your son. Help. May God bless her as well. So she was there, and then my sister would visit me really often, but my sister works over here in Islamabad. अच्छा. So she would visit me often, but still, you know, उस वक्त तो मेरा बच्चा सिर्फ मनी प्लांट की तरह उग रहा था, खाना मिल रहा था, you know, school जा रहा था. I couldn't, of course, I couldn't focus on nurturing him in that time. Yes, of course. हाँ, सिचुएशन इतनी वो है इस वक्त, आप बैठ के उसकी और चीज़ों का सोच ही नहीं सकते. राइट, अंडरस्टैंडेबल. ठीक है. So then so when he passed away, what happened after that? Then you immediately moved to your parents? Almost a month. After a month, I moved to Islamabad. I was in my iddat when I moved to Islamabad. When you moved to Islamabad. ठीक है. To your parents? Yeah, with my parents. ठीक है. And then what was the financial situation at the time? Obviously, you weren't working. You moved back. Yeah, उस वक्त whatever little money I had from investments and all, it was there. I moved my house from there, and I expected कि जो मेरा पोर्शन है वो रेंट पे चला जाएगा, उसके पैसे आएंगे, जो कि नहीं हुआ, जो कि नहीं आए. बहुत टाइम तक वो नहीं चढ़ा रेंट पे. एंड यू नो, उसके बाद फ़ौरन ही आई स्टार्ट वर्किंग. मतलब अगस्त में आई केम हियर, जुलाई में ही पास्ड अवे. आई थिंक अक्टूबर आई स्टार्ट वर्किंग. अच्छा, हाँ. Yeah. At the school. At the school, and they were very, very nice to me, and they were very considerate, because अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोलता है आपके लिए. And अल्लाह मियाँ वो लोग भी आपको ला के देता है. बिल्कुल. That you need. बिल्कुल, exact. That I can't, you know, I can't disagree with you, because I can't agree more with you, because इतनी सही बात है. अभी मेरे आसपास मेरा इतना छोटा सर्कल है, बट दैट्स माई सर्कल. वो सारे वो लोग जो मेरे साथ बुरे टाइम पे थे, नहीं सारे वो हैं. हाँ, एग्जैक्टली. छिट भी जाते हैं ना लोग, आपको पता चल जाता है कौन आपके साथ है, कौन नहीं है. बहुत अच्छी तरह से रियलिटी चेक मिलता है. हाँ, ठीक है. सो यू स्टार्टेड वर्किंग एंड ऑब्वियसली देन सपोर्टिंग योर सन एंड एवरीथिंग. सो देन ऑब्वियसली आपका एक सिंगल पेरेंट का एक रोल उस टाइम पर शुरू हुआ. वो कैसा था? व्हाट वाज दैट स्ट्रगल? यू नो, obviously एकदम से एक partner in parenting is missing. Yeah. What's that experience like? That was, again, it was more about survival. Achha, I didn't have time to think, and I still feel, and like, you know, जैसे even as a mother, I'm sure कि किसी ना किसी point पे you must feel guilty, हालांकि ज़रूरत नहीं है, बट किसी ना किसी aspect पे आपको लगता है कि बच्चा ज़रा से भी कुछ गलत करता है, आपको लगता है ओ शायद ये नहीं किया, it's my fault. It's my fault. तो वो बहुत होता था, but then, you know, after a point I said no, I'm doing the best I can. And yes, I will make mistakes. It's my journey, and it's his journey, and it's our journey. So ठीक है, हम दोनों ही उस journey से कुछ ना कुछ सीखेंगे. And to this date, yes, I do make mistakes. He does make mistakes. But अब मैं guilt feel नहीं करती. मुझे लगता है I'm doing the best I can. And that's what I'm supposed to do. इससे मैं और ज़्यादा क्या कर सकती थी? हाँ, that is what you're supposed to do.
हाँ. वो करते रहो ना. इवन अभी जैसे इसके एग्जाम्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो मैं ये सोचूं कि ओ माय गॉड इतना सिलेबस है. पर मैं कहती हूँ भाई नहीं, थोड़ा थोड़ा रोज करो, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना. वो मेरी इंस्टिंक्ट ही वो है, मैं इतना आगे का सोचती ही नहीं हूँ. Why take it one day at a time? हाँ. That's a better approach. वरना बंदा एंजाइटी से ही अपने आप को एक स्ट्रेस में डाल. शुरू में होता था, जब शुरू में हुआ ना, आई वाज लाइक यार ये कॉलेज कैसे जाएगा, ये मतलब कैसे मैं उस वक्त सोचती थी ओ लेवल्स कैसे अफोर्ड करूँगी, ट्यूशन्स कैसे अफोर्ड करूँगी. फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने खुद ही रास्ते खोलने शुरू किए ना. ऐसे अब अभी भी जब मैं कॉलेज की फ़ीस देखती हूँ, आई एम लाइक ओ माय गॉड इन 2 years he'll be going to college. Then I'm like यार God is there, God knows my situation, God knows I'm trying, yeah. I'm trying and he's there ना. और किसी से तो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. So if he's there तो बस तो उसी उसके ऊपर. हाँ, पेरेंट की कमी तो होती है. लाइक आई एम श्योर योर मदर डिड द बेस्ट फॉर यू बट यू मस्ट बी मिसिंग योर फादर. सो similarly the cases with my son, and I do miss a partner, a companion. Sometimes you want to rant and you can't, you know. आपको ये बात होती है जो आप सवाए अपने पार्टनर के, इवन अपने बच्चे के बारे में अपनी मदर को भी नहीं बता सकते. You know, so yes, that's there, but again you have to make the best of what you have. You can't went on. ऐसा नहीं है कि I don't have bad days, ऐसा नहीं है कि I don't have down days, ऐसा नहीं है. I even went through therapy. I took like 2 years of therapy. I was going to ask you if you ever did that. Yeah. That's important. Even my child went for therapy. Acha, that's really good. Very interesting thing you brought up, because this is not common. This is not normal. Normalized in our culture. What happened with me is also not normal. So if something abnormal happened in my life, so I'm sure it affected me. And if it affected me, then आई कांट जस्ट उसको मैं पीछे बिठा दूँ, नीचे बिठा दूँ और चलती रहूँ. और इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको अफेक्ट नहीं करी, क्योंकि वो पीछे चीज़ एग्जिस्ट करती है. इफ द ग्रीफ हैज नॉट बीन, सिचुएशन नॉर्मल नहीं है ना. इफ द ग्रीफ हैज नॉट बीन डेल्ट विद, तो इट्स गोइंग टू अफेक्ट एवरी डिसीजन, एवरीथिंग यू डू इन योर लाइफ. आज मैं किसी को बताई थी, somebody was telling me somebody had a really bad accident and I was asking about her husband. I said how is he now? तो she said यार जो फिजिकल हीलिंग थी ना वो हो गई है, लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो है वो अभी तक उसको बहुत बुरा है. तो I said is he going for therapy? She said not yet. I said he has to, because हमना when I went for therapy ना, मुझे लगा कि बस मेरा प्रॉब्लम यही है कि हस्बैंड की डेथ हो गई, ये हो गया. यार हम जब छोटे होते हैं तो भी बहुत चीज़ें होती है. When I started having like that therapy which was specifically for post traumatic stress, then I realized कि मैं तो बचपन में भी बहुत चीज़ें थी जो मुझे हर्ट की थी, जो मुझे याद ही नहीं थी. आहिस्ता आहिस्ता एंड टिल यू डोंट एड्रेस दोज इशूज़, वो if you brush them under the carpet, वो वहीं रहते, वो जाते नहीं है. They're stored in your body, they're coming out in your body, in your language, in your everything. I don't think I'm perfect, but much better. At least I know my trigger points. Yeah, you at least I know what triggers me. At least I know how to set my boundaries, which I didn't know before that. अभी भी मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नो कहना लोगों को, बट अब मैं फिर बहुत ज़्यादा पक्की और सख्त हो गई हूँ. मे बी बिकॉज ऑफ द journey I've been through, and also because of therapy, because I've started putting myself first in a lot of things which I was not doing earlier. जो मैंने कहा ना कि I'm doing my best, but yes, I'm doing my best. Everybody's doing their best, and if you're not, then you try to do your best. So how did you take this decision of going to therapy? Achha, my family is very supportive. My sister, I'm very close to her, so she was always very pro therapy. So when she said कि you should, तो सबसे पहली चीज़ मैंने इस्लामाबाद आते ही की थी कि I Google for a therapist. 2-3 सर्च किए जो मुझे जिसके साथ मैं ज़्यादा comfortable हुई, और आज one of them is one of my clients. तो so she actually she said I didn't recognize you, and मैंने एक दिन Instagram पे देखा कहती I was so proud of you. So तो एंड देन आई स्टार्ट गोइंग. फिर मैंने अपने बेटे को तो मैंने कराची में ही भेजना शुरू कर दिया था उसी वक्त, while my husband was unwell. अच्छा, that is so smart. Again, that was not a normal situation for an 8-year-old. कितने 8 साल के बच्चे होते हैं जिनके बाप इतने क्रिटिकली इल होते हैं. वो इतना बीमारी से डरता था, अभी भी डरता है. अगर मुझे ज़रा सा भी कुछ हो जाए, so he gets scared of the ICU. After my husband passed away, my son had an accident. And he fractured his skull. And then then he got meningitis. How did you deal with that open infection? And he went into ICU. And he was 9, and he knew कि ICU क्या होता है, and he knew his father went to the ICU and never came back. So वो वाला जो time था, and at that time doctor wasn't taking me seriously, and he was like कि अच्छा
वो आप इसके वालिद को बुलाएं। मैंने कहा वालिद नहीं है, हम ICU लेके जा रहे हैं। आई सेड यू नीड टू टेल मी कि आप क्यों लेके जा रहे हैं, बिकॉज यू नो आई विल नॉट टेक इट, यू नीड टू टेल मी। वो बस इमरजेंसी में नहीं जैसे होता। हाँ. और वो उस टाइम पे मेरे बेटे को ये बात समझाना कि नहीं तुम यू नो यू वोंट एंड अप लाइक बाबा, यू विल कम आउट, you will make it. Yeah. एंड हालांकि वो सिर्फ एक रात रहा था ICU में, बट दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट नाइट्स he and I had, because he was asking me so many questions. उसको जो तकलीफ थी वो तो थी, लेकिन जो उसको डर था ना वो बहुत ज़्यादा था. So he needed therapy. And even अभी भी अगर you know मुझे फील होता है तो मैं उससे बोलती हूँ कि if you feel you know go, अब वो बड़ा हो गया so he can address his issues, but still if he feels I'm all for therapy. बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ व्हाट 6 years ago, 5 years ago. Yeah, हाँ, और उस टाइम पे तो बिल्कुल ही थेरेपी. हाँ, अब तो फिर भी दिस इज़ लाइक अ normalized thing, you know. So it was, I think, very 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 smart of you कि उस टाइम पे you did take this step for yourself and your son. पढ़ो बेटा, नहीं नमाज पढ़नी चाहिए. I'm all, जितना स्पिरिचुअल आप अल्लाह से क्लोज होंगे उतना आपके लिए आसानी होगी. लेकिन देखिए जब आपको हार्ट अटैक होता है आप नमाज पढ़ने नहीं जाते. हाँ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं. फेथ इज़ ग्रेट, फेथ इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या मुझे बस ये होता है कि आप थेरेपी ले रहे हो, आपका कोई मेडिकल कंडीशन है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हो, वो चीज़ों के साथ फेथ इज़ नेसेसरी एज वेल. नेसेसरी, बिकॉज वो भी ना, इफ़ यू डोंट हैव फेथ, इफ़ यू डोंट हैव बिलीव, गेटिंग थ्रू दैट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट. इफ़ यू डू दैट विथ फेथ इट्स ईजियर, बट फेथ अलोन cannot solve your problems. मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे बता दो क्या जरूरत है पैसे खर्च करने की, क्या जरूरत है 5,000 per session. Oh my God. But you need to go to someone who is not biased. Yeah. Because see, if you are my friend or even if you know me and I talk to you, तो कहीं ना कहीं you'll be like यार बचाई राबिया, हाँ उसके साथ सही हुआ या whatever. But जो थेरेपिस्ट होगा ना वो, क्योंकि ना वो मुझसे रिलेटेड है, ना वो आपसे रिलेटेड है, ना वो किसी और से, तो वो एक आपको ऐसा ओपिनियन देगा जो कि आपसे कि मतलब इट वोंट बी बायस्ड. सो दैट्स व्हाट यू नीड. एंड इट्स नॉट इवन अबाउट बायस ना, एक थेरेपिस्ट को पता होता है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दीज थिंग्स. इनफैक्ट इस तरह लाइक समटाइम्स टॉकिंग टू पीपल कैन बी मोर डैमेजिंग बिकॉज द वे दैट दे रिस्पॉन्डिंग इज नॉट एक्चुअली वर्किंग फॉर योर ग्रीफ. You know, it's a rant, it's a vent, it makes you feel better at the end of the session, but that doesn't mean that it's leading to a resolve. Yeah, and sometimes like you know if you talk to your best friend or like a friend, so they're so close to you, तो अगर कोई बंदा आपको hurt करता है कहते हैं हाँ ये तो है ही ऐसा, ये तो exactly, आप objectivity नहीं है उसके अंदर. हाँ, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन जो थर्ड पर्सन है वो हो सकता है वो कहे नहीं यार तुम्हारा पर्सपेक्टिव भी सही नहीं है, how to handle things. And sometimes you need to learn how, like my therapist taught me how to let go of things which are not under my control. ठीक है, and हम वो लेके बैठे रहते हैं. आसान नहीं होता to let go, and let go के लिए she taught me different exercises, different breathing techniques, and sometimes जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ मैं एक रट में फंस जाती हूँ. इवन अभी भी जैसे I'll think about a situation ना, मैं सोचती रहूँगी obsessively. सोचती रहूँगी. So you know sometimes you need to learn how to snap out of this situation, whether it's by exercising, whether it's by listening to music or whatever your doctor therapist tells you. So you need to learn. These coping mechanisms and these unless you go to a professional. So क्या कहते हैं, do you think that for your child therapy made a huge difference to how he is now? I'm sure it did. I'm sure it must have. Did he ever discuss his therapy experiences with you? No. It was a completely confidential thing. You never and the interfered. therapist said that you are not supposed to interfere ask him till the therapist said खुदा ना खास्ता if there will be something worrisome I will talk to you. Okay. But other than that, and then you know हमें सबकी बाउंड्री सेट करनी होती है. बच्चे की भी, इवन योर बेबी हैज़ अ बाउंड्री. ठीक है, लाइक यू सेड, आई सेड आई रियली वांट टू सी हिम, यू सेड ही इज स्लीपिंग, मे बी व्हेन यू नो वी फिनिश दिस पॉडकास्ट यू कैन सी इफ ही इज अवेक. तो वो उसकी बाउंड्री है ना, वरना जाके मैं उसको कुछ करूँगी तो वो मुझे थप्पड़ तो नहीं मारेगा. लेकिन that's it's his sleep time. He's not going to like that. Are you getting that point? I get it. So इसी तरह से मेरे बेटे की बाउंड्री है कि भाई if he doesn't want to discuss something, तो that's okay. You know? That's okay. As long as he's saying कि I'm okay for therapy, मुझे जाना है या करना है, तो it's okay. It's okay. Yeah. Very nice. अच्छा, so what do you think about कि I'm sure कि जब when this whole situation happened, what was one of your biggest learning or realization? क्या होता है biggest reality check इसमें आपको क्या था? सबसे पहला तो ये था कि
आपको लाइक यू नो फाइनेंशियली अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट करना चाहिए डे 1 से। और सबको अपना कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिकॉज मैं पहले भी मैंने किसी जगह बोला था कि मुझे मुश्किल हुई लेकिन मुझे बहुत आसानी हुई कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। मैं शुरू से काम करती थी, भले मैं स्कूल में करती थी पर मेरी लोगों से इंटरेक्शन थी। मतलब आप उस तरह की फीमेल नहीं थी जिसने कभी बाहर स्टेप आउट नहीं किया, चीज़ नहीं की, लोगों से बात नहीं की। एंड देयर आर women like that. They are. And you imagine Hamna, me being like you know what I am right now. I did not have my own bank account. I had a joint bank account. Oh. And I did not know कि अगर किसी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसमें से पैसे नहीं निकाल सकते, वो फ्रीज हो जाता है। Oh my God! I didn't know this also. Exactly. You need to. तो आपको बैंक अकाउंट के लिए अच्छा, जैसे हमारी अगर जॉइंट इन्वेस्टमेंट थी तो वो मेरे हस्बैंड के अकाउंट में आनी थी, तो अगर वो रहा ही नहीं तो साइन कौन करेगा? उसके लिए सक्सेशन फाइल करनी पड़ती है। बेसिक मतलब आपकी बेटी का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें उसकी मंथली एक सेविंग होनी चाहिए। या एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके जो वो 16, 17, 18 साल की हो उसकी पॉकेट मनी, उसके माइनर बैंक अकाउंट्स भी बनते हैं। बड़ा बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। सो ये वाली छोटी छोटी चीज़ें। नादरा से मुझे अपना ID कार्ड चेंज कराना था फ्रॉम लाइक अ मैरिड वुमन टू विडो। आप सोचो मेरे पता नहीं कितने चक्कर लगे थे। एंड ये मैं एक एजुकेटेड औरत थी। एंड जिसमें आपको लोग तंग करते हैं, तो वो औरत जिसने कुछ भी ना किया हो, जिसको आपने लाइक पापा की प्रिंसेस बना के रखा हो, तो यू डोंट नो, वी ऑल डोंट वांट एनीथिंग बैड happening to our close loved ones, but you can't. But yeah, there are no guarantees in life. Yeah, there are no guarantees in life. Like, you know, I see my mom as well कि अभी भी ना like she has everything sorted. उन्होंने ना अपनी विल भी लिखी हुई है, उन्होंने अपने एसेट्स की वो डिवीजन भी सारी सब कुछ प्लान किया हुआ है, इंश्योरेंसेस हर चीज़ के। मैंने इंश्योरेंसेस की भी मैंने। अभी मेरा बेटा माइनर है तो मुझे पता है कि अभी कौन है, फिर कौन होगा, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट। तो पेपर वर्क बहुत क्लियर है। हाँ, और हर चीज़ इज सॉर्टेड कि अच्छा कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी, लॉयर है, लाइक उन्होंने हर चीज़ बताई हुई है। इस केस में इससे बात करनी है, इस केस में लाइक यू नो गुजरी हुई है वो उन पे। एंड ऑब्वियसली शी नोज कि how complicated it gets, how difficult it gets. It has been 7 years, like now in July, I think it'll be the 8th year since my husband passed away. And अभी तक मेरी जो प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं जो भी हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। अगर शुरू में तो मैं उस पर भी बहुत रिलाई करी थी कि अच्छा वो पैसे आ जाएंगे, मैं कुछ कर लूँगी, बिकॉज आपका पहला वो एक होता है। देन जिस दिन मैंने रियलाइज़ किया ना कि वो पैसे नहीं आएंगे, अगर वो आएंगे वो फाउंड मनी होगा, अगर वो मेरे नसीब में होगा मिल जाएगा, अच्छा, अदरवाइज मुझे खुद कुछ करना है। उस दिन से माई लाइफ चेंज्ड। बिकॉज जब आपको लगता है ना कि अच्छा ठीक है ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं अब जो, और आपको पावर भी बहुत छोटी बात है या शायद गलत बात है, बट आपको पैसा पावर देता है। हाँ, इट्स वेरी ट्रू। घर में भी कुछ some things are bitter realities, right? Yeah. घर में भी देखो, if there's one person who is earning, no matter how good your husband is, no matter how much he loves you, but if he's the one who's bringing income, automatically there's a power dynamic. Yes. But if you both are earning, then the equality comes। उसी वक्त शुरू हो जाती है ना इक्वालिटी। बिकॉज देखो हम भी तो इक्वल नहीं हो रहे। एक बंदा कमा रहा है, एक सिर्फ खा रहा है, ठीक है वो बच्चे का ख्याल रख रहा है, बाकी चीज़ें कर रहा है, लेकिन अगेन जो पैसा ला रहा है ना उसकी ही ऊपर डिसीजन मेकिंग उनकी होती है। और या दे आर बेसिकली द बॉस। आप चाहे जितना भी उस चीज़ को डिनाई कर लो। या सो वही बात है कि मनी ब्रिंग्स यू दैट पावर इन योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आई टेल यू वेरी स्मॉल एग्जांपल। जैसे मैं कोई ड्राइवर हायर करती हूँ या कुछ करती हूँ तो वो ना सांप ढूंढते हैं पहले कि जी सांप, मतलब सांप से बात करेंगे वो। देन आई टेल देम आई एम द सांप, ठीक है। शुरू में जैसे मेरा ड्राइवर आया तो नॉट दैट आई वांटेड एनीथिंग, तो वो वैसा नॉर्मल था। और यू नो अच्छा अगर मेरी बेटे की भी कोई बात या कुछ उसे गाड़ी का कुछ कहना होता था तो वो मेरे बहनों को बोलता था, बिकॉज वी लिव टुगेदर, लाइक आमने सामने। ही वुड गो टू हिम एंड कोई मसला हुआ, ही वुड गो टू हिम। एंड देन he realized after working with me after few days कि अच्छा ये तो अपनी बॉस खुद है। तो मैं उस दिन इतना हंसती थी, मैंने कहा मेरे लिए दरवाज़ा खोलना शुरू हो गया। not that I want him to do it, but he realized, he said oh बॉस तो ये है, क्यों? And I'm sure they don't like it, but क्यों? Because I am the one making decisions. I am the one giving calling the shots and giving the money. So I was like यार ये मेरे लिए दरवाज़ा खोलना शुरू हो गया है, मतलब इसको क्या हुआ है? So but that's suddenly the realization that जहाँ money lies वहाँ उसने power देखी है, वहाँ उसने वो एक respect देखी है जो उसको देनी है। हाँ, so you were talking about your realizations. One of them was financial
independence and security. What do you have to say about when something like this happens, dependencies, reliance on people? What was your experience there? Yeah, dependency, alhamdulillah, I had a very supportive family. But जब ये थोड़ा सा फाइनेंशियल पीरियड पूरा हो गया तो आपको लोनलीनेस हिट करती है. आपको बहुत बुरी तरीके से हिट करती है. कहना आसान है, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, बट आपको शुरू से कंपेनियन, पहले your father was taking care of you, then your husband was taking care of you, and suddenly no one is taking care of you, and you do miss the companionship part as well. So yes, financial रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस कंपेनियनशिप, आपको दोनों की कमी होती है. एंड समटाइम्स यू फील गिल्टी कि अगर आप किसी तरफ देखते भी हैं तो आप कहते हैं ओ मे बी मैं तो सही नहीं कर रही. डिवोर्स में शायद आपकी बिटरनेस होती है एक रिलेशनशिप के लिए, तो आपको लगता है शायद आपका राइट है. आई डोंट नो बिकॉज आई हैवंट बीन थ्रू अ डिवोर्स, बट शायद आपको फील होता है कि यार मे बी ये आदमी सही नहीं था, अगला सही हो. लेकिन जब किसी की डेथ होती है तो उसमें और आपकी अच्छी रिलेशनशिप होती है, अच्छी रिलेशनशिप होती है, तो फिर आपको ये भी लगता है कि यार कहीं मैं उसके साथ तो नहीं, यू फील लाइक यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, व्हिच इज देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट यू डू फील दैट एज वेल. तो कई बार आप उस पर अपना गार्ड लगा देते हैं, कई बार आप वैसे गार्ड लगा देते हैं, बिकॉज पीपल ओवर हियर इट्स वेरी डिफिकल्ट. पहली शादियाँ नहीं होती तो दूसरी तो और मुश्किल हो जाती हैं. सो उस पर देयर ऑल काइंड ऑफ वियर्ड पीपल हु ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ यू. बट अगेन आई वुड लाइक टू से समथिंग, nobody can take advantage of you till you don't let them take advantage of yourself. So if somebody says ना कि नहीं जी वो तो नहीं, आपने उनको चांस दिया होगा तो उन्होंने किया होगा. ऐसे कोई भी मर्द कुछ भी नहीं कर सकता, कोई औरत भी आपके साथ कुछ नहीं कर सकती जब तक आप उनको अलाउ ना करें अपनी बाउंड्री क्रॉस करने के लिए. सो और ये भी रियलाइज़ किया कि अपनी बाउंड्री सेट करनी है हर पॉइंट के ऊपर. एंड did you think कि second marriage के taboos भी बहुत हैं, this is not something that you can openly discuss around people, or does your family, your friends sort of encourage you into it कि यार? मेरे तो घर में सबने दूसरी शादियाँ की हुई हैं. अच्छा. So my sister became a widow when she was very young. She was just 21 when she became a widow. Her son was 3 years old. Oh, and no. then she remarried when she was 42. Oh my God. Yeah. When her own son was her wakil at the time of her nikah. जो होते हैं ना वो गवाह चाहिए होते हैं. Oh wow. So and then my brother, he had a divorce which was okay, like two good people didn't get along, and then he remarried. तो मेरे इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई टैबू नहीं था. लेकिन मुझे ये था कि मुझे कभी कोई ऐसा सही आदमी नहीं मिला. आई वॉज वेरी ओपन टू इट, आई एम स्टिल वेरी ओपन टू इट. मैं कभी उस तरह से नहीं वो करती. आई हैव टू मीट समवन, आई विल, बट देन आई विल नॉट गेट मैरिड जस्ट फॉर सेक ऑफ गेटिंग मैरिड. जैसे पहले कर ली थी कि शौक था, अब कोई शौक नहीं है. और अब तक एज भी ऐसी आ गई जब तक आपको ट्रू अगले बंदे से कंपेनियनशिप नहीं फील हो रही, यू आर नॉट गोइंग टू. इफ आई रियली वाइब वेल विद द पर्सन, इफ आई डायनामिक्स match, then why not? I'm open to it. But it's not उस तरह के, क्योंकि उस वक्त होता है ना कि शादी वो उस टाइम पे एक स्टेप होता है जो आपने चेकलिस्ट होती है जो आपने करनी होती है. जैसे पढ़ाई पूरी की तो शादी होगी, फिर बच्चे होगा. बट अब वो तो नहीं है. Now this is a completely your own. passed away ना, तो भी मुझे था कि यार शादी कर लूँ, और तो कोई सेटल होने का चांस नहीं है, मतलब कैसे करूँगी. अच्छा, you had this thought. I had this thought and I met quite a few weirdos because of this. Yeah. But then I realized no. And now I'm like glad that I didn't get married for wrong reasons. शादी करो, ज़रूर करो. मैं कहती हूँ 50 साल की उम्र में मिले, why not? Just on a lighter note, what do you mean by weirdo? What sort of experience? No, like really weird. जैसे I would marry you but you have a son, तो उसका क्या करेंगे? वरना if you were single I would marry you. अच्छा, खुद आप 40 साल के, अम्मी नहीं मानेंगी, भाई फिर परस्यू क्यों कर रहे हो? मतलब तुम 40 साल के और अभी भी तुम्हें अम्मी की इजाज़त की ज़रूरत है, तो तुम मतलब डेट पे आने से पहले तो नहीं अम्मी से पूछ रहे कि कैन आई गो एंड टेक हर आउट फॉर डिनर? तो इस तरह के ridiculous. अच्छा, so now let's talk about your other baby, Basil Pantry. That is my baby. So how did that then finally come about? Teaching से फिर Basil Pantry कहाँ से शुरू हुआ? शौक कहाँ से आया? क्या हुआ? शौक तो शुरू से था, बहुत मैं खाना पकाती थी. इवन कराची में I was doing दावतें and everything. But हुआ ये कि 2000 I had gained a lot of weight while I was in Karachi. अच्छा. And I was like, when my husband passed away, I was 90 kilos.
So when he passed Achha. away and I came to Islamabad, I started losing weight. It took me 3.5 years to lose weight. Achha. So when I did, so people started noticing me कि अच्छा इतना ज़्यादा. तो उस ज़माने में मैंने मुझे याद है समर ब्रेक थी 2018 में. उस वक्त समर ब्रेक नहीं थी. मैंने कहा चलो ऐसे एक पेज बनाते हैं एंड वीकेंड्स पे आई स्टार्ट कुकिंग. ठीक है. शौक में, बिकॉज अगेन वीकेंड्स बहुत बोरिंग होते थे. तो इस्लामाबाद में किसी को ऐसे जानती नहीं थी, अभी भी नहीं मैं जानती इतना सोशली. तो आई मेड अ पेज एंड मैंने से वीकेंड ऑर्डर्स से शुरू किया. देन इस्लामाबाद ईट हो रहा था, तो उस वक्त फ्रेंड ऑफ माइन सेड व्हाई डोंट वी पुट अप अ स्टॉल. तो उस वक्त स्टॉल भी लगा लिया, लॉस में भी चले गए, बट उससे मुझे रिकग्निशन मिलना शुरू हो गया. पीपल्स आर लाइकिंग माई फूड. देन 2018 में ही रमज़ान में समबडी ऑर्डर्ड मी, और रमज़ान का बड़ा सा ऑर्डर कि पूरे रमज़ान उनके पूरे स्टाफ को प्रोवाइड करना था. अच्छा. देन समबडी कॉल मी एंड शी सेड कि भाई तुमने इतना वेट लूज़ किया है, मुझे पता है, तो तुम मुझे कीटो कराओ. तो मैंने इनिशियली कीटो से किया था, पर मैं लो कार्ब पे थी. आई सेड यार मैंने तो कोई इस तरह से एजुकेशन उसके बारे में नहीं ली. शी सेड नहीं तुम कराओ. आई स्टार्टेड डूइंग इट विद हर. उसके अगले दिन उसकी भाभी आई, फिर फ्रेंड आई, एंड देन विद इन 3 days there were 8 people, then there were 16. एंड देन मैंने कहा कि मैं तो जून जुलाई में स्कूल जाऊँगी, तो फिर मैं तो नहीं कर सकूँगी, सिर्फ छुट्टियों में करूँगी. बट देन आई मेट समवन, तो ही एडवाइज्ड मी कि नहीं, कीप अ कुक who will help you out and Keep start doing it. हाँ. एंड फिर बस अब देन देयर इज नो एंड. फिर उससे तो फिर वो 20 से 30 से 50 वो बढ़ते माशाल्लाह. सो टुडे वी आर हियर. तो एंड एज यू सेड, उस वक्त मैंने करेक्ट नहीं किया. वी स्टार्टेड एज अ होम बेस्ड किचन. अच्छा, it's not home based anymore. नाउ वी हैव अ कमर्शियल किचन. अच्छा. We have office, we have a storage, we have 19 people working under us, alhamdulillah. अच्छा. So now it cannot be home based. Yeah, now it has But grown it is still very up. much home based because रोज़ खाना मैं ही जाके जाती हूँ. जो बंदा मेरे साथ पहले दिन से था आज भी वही है. हाँ. हम 2 ही खाना करते हैं, बाकी सब हेल्पर्स हैं. एक हमने और बंदा रखा है. तो आहिस्ता आहिस्ता अभी आई वाज टॉकिंग एट योर ऑफिस, तो दे स्टार्ट विद यू एंड वन पर्सन. वो भरते कारवां बनता गया. तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी. लेकिन अब वो होम बेस्ड रहा नहीं है. अब वी आर रजिस्टर्ड बिजनेस, वी पे आवर टैक्सेस प्रॉपर अब एज अ बिजनेस कर रहे हैं. Running as a business. So now you're full-fledged businesswoman. Yeah, probably going in a loss. Bad at accounting, but still, yeah. So क्या कहते हैं कि फिर जब आपने ये बिजनेस शुरू कर लिया, at what point did you then decide कि this is full time and you're going to quit your job? 2018-19 में मैं स्कूल भी करी थी, बिकॉज अगेन मुझे ना अपने आप पे इतना यकीन नहीं था कि मैं कर सकती हूँ. जब कोविड हिट हुआ है तब ये स्टोरी मैं बहुत दफ़ा सुना चुकी हूँ. जिस दिन कोविड हुआ उस दिन मेरे घर में आग लग गई थी एंड माई होल हाउस गॉट बर्न. एंड दैट्स हाउ आई मूव्ड इनटू कमर्शियल किचन, बिकॉज वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे जहाँ मैं रहती हूँ कि अब आप यहाँ किचन खोलें. अच्छा. सो आई हैड टू मूव टू अ कमर्शियल प्लेस वेयर आई फाउंड अ किचन एंड आई स्टार्ट. वो बहुत इतना सा था उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया. तो जब आग लगी है और जब मैं स्कूल से फिर ऑनलाइन काम शुरू हो गया, तो आई रियलाइज़ कि बेसल पैंट्री तो वो एकदम से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, बिकॉज आई कैन पे मोर अटेंशन. सो उस वक्त भी मुझे फिर थोड़ा टाइम लगा, बट इन 2020 आई रिजाइन्ड फ्रॉम स्कूल एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फुल टाइम ऑन बेसल पैंट्रीज एंड इट डिड वंडर्स. बिकॉज ऑब्वियसली आपका काम है, यू कैन रियलाइज जब आप फुल टाइम एक काम को तो देते हैं, डिफरेंस बहुत पड़ता है. या. वो एक्चुअली थोड़ा चिकन एंड एग प्रॉब्लम भी होता है कि आप अगर दूसरा काम कर रहे हो साथ साथ आपको होता है यार ये चीज़ इतनी अच्छी तो मैं चला नहीं सकूंगी, लेकिन जब आप छोड़ोगे तो आप उस चीज़ को चला सकोगे. उस वक्त मैं सोचती थी ओ माय गॉड मेरे बेटे की फ़ी, ओ माय गॉड वो जो इनकम एक आ रही थी, तो वो तो चाहे कुछ भी आती है. बिजनेस में हाउ थिंग्स आर, दे फ्लक्चुएट. अभी मुर्गी महंगी होगी, कभी लॉस हो रहा है, कभी फ़ायदा हो रहा है. तो वो है. और मेरा ये था कि आई डिड नॉट हैव एनी मनी ऑन माई ओन. Whatever I was making at Basil, still to this date, I'm reinvesting it in the business. So when you reinvest in the business, so you don't have ample amount of cash. People, they just ask me, अच्छा कितने लोग हैं, and they do a multiplication. And they say, oh, they feel like कि वो सारा पैसा आपकी जेब में जा रहा है. I know this. You know this. And वो multiply करते हैं, oh my God, इसके तो मजे हैं. लोग कहते हैं, oh, rich bitch. हाँ, exactly. अच्छा मेरा तो कहते हैं, अच्छा सब्सक्रिप्शन कितनी है? इतनी. अभी कितने लोग हैं? इतने. अच्छा ये तो इतने लाख हो गए. तो इतने लाख में कॉस्ट आपने की है, आपने इतने लोगों की सैलरी निकाली है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखा है. Yeah, the investment that goes in is a lot. And constantly, I'm sure with Happy Chirp as well, you would want to buy new equipment every 6 months. You would want to upgrade your things. Yeah, upgrade our lighting, camera, set, हर चीज़. अभी when I came here ना, because my next thing is I want to make short. बिकॉज कोई भी यहाँ पे
कर रहा होगा, बट मुझे नहीं पता कि कोई लो कार्ब और कीटो वीडियोस उर्दू में प्रॉपर कर रहा हो। अच्छा, हाँ, नहीं यार, हाँ, ठीक है, ज़्यादातर बाहर के चैनल्स हैं, तो आई वांट टू डू दैट, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं हम मास्टर्स को नहीं करती, मील प्लान इतना महंगा पड़ता है, हम कर नहीं सकते। तो 2 चीज़ अब मैं करना चाह रही हूँ, एक तो मैं खाली मील प्लान्स देना शुरू करूँ कि ठीक है, इट्स लाइक अ कंसल्टेशन, कि अगर आप पूरा मील नहीं ले रहे, आप मील प्लान ले लें, और छोटी छोटी वीडियोस, मतलब नॉट फॉर मेकिंग मनी बट जस्ट फॉर, जैसे आई सेड कि आई एम क्रिएटिव एंड आई लाइक डूइंग इट। तो अभी मैं कही थी, ओ माय गॉड, ये तो बहुत मेहनत, इतनी लाइटिंग कौन करे। हालांकि अभी जो मैंने नई जगह ली है उस हिसाब से लिया है कि मैं छोटा इस स्टूडियो स्पेस करके वहाँ पे खाने का कर सकूँ। बट वही मैं सोच रही थी, इक्विपमेंट ये और तो अगेन एवरी टाइम यू थिंक, तो वो बट आप वो मुझे जब आप किसी को देखते हो ना, तो लाइक आप इसको देख रही हो, बट व्हेन इट स्टार्टेड ना, सो वी डिडंट छोटे से कैमरे से स्टार्ट। हाँ, सो व्हेन यू ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, एंड आई एम श्योर यू नो दिस, राइट? आप किसी को देखते हो, आपको होता है यार ये तो आई कांट डू इट, बिकॉज यू डोंट रियलाइज कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था ना, तो वो भी आप जब मैं इस्लामाबाद पहली बार गई थी ना, मेरे साथ किचन कुजीन वाले और सभी अपने ovens वगैरह लाए थे। मैंने पिंडी से वो पकड़ा था बंदा जो मेरी मछली तल दे, कढ़ाई पकड़ी थी, एक देगचा एक से मांगा था, एक देगचा एक फ्रेंड की अम्मी से मांगा था, और वो भी उन्होंने डांटा था, डब्बा ना घुमाना हमारा, और इतना ज़्यादा सामान ऑर्डर कर लिया था फालतू में, आइडिया नहीं था। एक्चुअली 80,000 का लॉस हुआ था उसके अंदर, बट बहुत ज़्यादा लाइक लोगों के सामने आ गए थे, हाँ। टेस्ट किया था, सबको इतना मुफ्ता खिलाया था क्योंकि कोई स्टॉल पे नहीं आता, टेस्ट करें। आई थिंक वो इट्स हाउ यू व्यू समथिंग, राइट? अगर आप उसको प्योरली फाइनेंशियल उसमें देखो तो इट्स अ लॉस एंड फेलियर आप कह सकते हो, बट अगर आप उसको एक बड़े लेंस से देखो तो इट्स नॉट टेक्निकली अ लॉस, बिकॉज अ फाइनेंस गाय, तो वो मुझे हमेशा कहता है, यू आर नॉट मेकिंग मनी, यू आर जस्ट लाइक फीडिंग पीपल। बट आई टेल हिम कि भाई अगर मेरे नॉर्मल खर्चे अगर हो रहे हैं ना, और मेरा शौक है, मैं थकती नहीं हूँ बेज़िल के साथ। मुझे रात को 4 बजे किचन में, यू लव व्हाट यू डू। टीचिंग तो मुझे लगता था अजाब है, मुसीबत। हालांकि दे वर सो नाइस टू मी, आई लव किड्स, आई लव चिल्ड्रन, बट नहीं करना। हाँ, सो वही बात होती है कि, एंड प्लस कोई भी बिजनेस होता है ना, a lot of them take a lot of years before they become profitable. You have to put in that effort and time and money, and forget about the money aspect to focus on the product and what you're doing with it, So no, like I'm sure, like now when you look at it and how far you've come, like especially when you couldn't have imagined कि Basil Pantry आपका कभी एक business होगा, so you know its value, and और जो ज़्यादा बिजनेस और टेक्निकल और वो लोग होते हैं उनके डिफरेंट व्यू होता है। वेरी क्लोज फ्रेंड, मुझे इस्लामाबाद का इतना पता नहीं है, ही इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद। तो मैं जब शुरू में करती थी ना, मुझसे कहती थी मुझे बॉक्सेस ला दो, मुझे ये कर दो, तो कहता था तुम्हारे पास बहुत ऑर्डर्स हैं जो तुम्हें बॉक्सेस ला दो। अब तो हमारे वेंडर्स हैं, हम पूरे महीने के लेते हैं 1000 बॉक्सेस। तो मैं हंसती हूँ, कहती हूँ है ना। तो ही ऑल्सो लाव्स, बट एक्चुअली आपके, एंड ही डिडंट मीन बैड फॉर मी, बट वो एक क्यों मैं उस पर कहती रहती थी ना, बॉक्सेस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उसको इस्लामाबाद का पता था, मुझे पता नहीं था, तो वो चिढ़ता था। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट अगेन करते रहो, रुको नहीं। डोंट, इफ़ यू फील यू पैशनेट अबाउट समथिंग, इफ़ यू फील यू एंजॉय डूइंग दैट थिंग, रुको नहीं, करते रहो। बिकॉज सी कोविड आया तो भी बिजनेस एकदम से, मेरा नहीं, बहुत लोगों का नीचे गया, फिर एकदम से ऊपर आया, फिर नीचे गया। सो आपको डरना नहीं है, आपको बस करते रहना है। सो बेज़ल पैंट्री के सेटअप की जर्नी में क्या सपोर्ट सिस्टम था आपका? सबसे बड़ा अल्लाह का सपोर्ट सिस्टम था। दूसरा ये था कि जब मेरा जला है, आई ऑलवेज टेल एवरीवन, ज़ुबैर कोका कोला, हैव यू बीन टू कोका कोला? या सो आई डोंट इवन नो ज़ुबैर दैट वेल, आई कांट इवन से कि ही इज़ अ फ्रेंड, आई नो ऑफ हिम एंड ही वाज डूइंग कीटो, आई थिंक लो कार्ब विद मी एट दैट टाइम। अच्छा, तो जब मेरा सबको जला, मुझे इक्विपमेंट चाहिए था, इतना महंगा इक्विपमेंट होता है। सो हम लोगों का एक ग्रुप है, तो उसमें मैंने लिखा कि एनीबडी सेलिंग सेकंड हैंड इक्विपमेंट, सो ही कॉल मी, ही सेड मैंने अभी अपना किचन रेनोवेट किया, व्हाट डू यू नीड? सो आई टोल्ड हिम, आई सेड मेरा ऐसे घर जल गया है। लाइक यू सेड ना, लोग आपके पास अल्लाह ताला खुद ऐसे लोग ले आता है। ही सेड मुझसे इक्विपमेंट ले लो, जो पैसे हो दे देना। एंड दैट वाज सच अ बिग थिंग। हम ना यकीन करो, मैं उसकी गई हूँ घर, मैंने वहाँ से इक्विपमेंट उठाया है। उस वक्त मेरे पास 6 क्लाइंट आए हैं, एंड मैंने उसी वक्त इसको बोला मुझे अपना अकाउंट नंबर दो। ही सेड मुझे अभी नहीं चाहिए, तुम सेटल हो जाओ तो दे देना। आई सेड नहीं, आई सेड, ही सेड अच्छा ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हें ज़रूरत हो तो मांग लेना। आई सेड ओके। दैट वाज सच अ बिग जेस्चर। आई डोंट इवन नो हिम, मैं उसके भी घर भी नहीं गई हूँ, बट जिस
इस तरह से बीइंग देयर फॉर समवन, तो इस तरह से ये तो एक नाम है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हु सपोर्टेड मी एंड आपको वो चाहिए होती है। और कई बार फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती, कई बार योर फ्रेंड्स जस्ट सेइंग यू कैन डू इट, यू आर देयर, जैसे अभी आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्रेंड कि उसने मेरी वेबसाइट सेट की, बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए की, वो अभी भी ही वर्क्स ऑन माई लिस्ट एंड एवरीथिंग, वो बैक एंड पे काम कर रहा होता है। सो जो वो सपोर्ट कर सकता था, तो वो वाली सपोर्ट। और हर कभी कभार यू आर हैविंग अ बैड डे और क्लाइंट्स आपकी वो हो जाती है, सो एट दैट टाइम टेलिंग यू कि भाई इट्स ओके, वो वाली सपोर्ट, वो वाली लोग आपको you had those people, and what would you say कि in setting up a business, what were some of your struggles, as in क्या obstacles आए आपको, क्या चीज़ें मुश्किल लगी कि यार एक बिजनेस सेट करने में ये प्रॉब्लम्स आए थे? मुश्किल जो मुझे अभी भी लगता है फाइनेंशियल्स, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा वो वीक पॉइंट है, ठीक है, फाइनेंशियल्स मैनेज करने के लिए। दूसरा ये होता है कि बिकॉज जब आपको लगता है ना व्हेन यू आर a woman and ज़्यादा like I was so happy as you said कि we are just like happy chirp में सब लड़कियां हैं, सब women empowerment है। मैंने बहुत कोशिश की अपने उधर, बट मेरी नहीं हो पाती है ये चीज़, बल्कि after I finish this podcast I am going to speak to you about this कि how can I make it more women empowerment thing in my business। तो उसमें शुरू में ना मुझे seriously नहीं लेते थे, even my own people. Such a running theme in my podcast, Rabia. Every woman that comes and sits on this chair says that she was not taken seriously. उनको फिर ये लगता था even so मैं कोई रेंट लेने जाती थी ना शॉप या कुछ, तो वो मुझे सीरियस नहीं लेते थे। फिर I would ask my friends or my brother to call them. And even my own people, अच्छा बाजी तो नहीं, आपसे तो नहीं होगा, अब जाके दे नो आई मीन बिजनेस, बिकॉज मेरे 2-3 रूल्स हैं कि कोई ख़राब ज़बान नहीं इस्तेमाल करेगा, कोई आपस में लड़ेगा नहीं, अगर लड़ना है तो बाहर जाके लड़ें। और 2-3 चीज़ें जो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, they do take me seriously without me raising my voice, without me doing any बदतमीजी। and as you said ना कि अब उनको पता है कि भाई she is the boss and they are seen कि कहाँ से कहाँ मेरे साथ माशाल्लाह आज तक जो आया किसी ने छोड़ा नहीं है। अब मेरा लाइक 4th ईयर है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पीपल हु हैव बीन विद मी सिंस बिगनिंग, इक्का दुक्का तो होता है बट उसके अलावा नहीं होता। एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट है जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैंने बहुत कोशिश की, बल्कि मैंने एक ज़माने में एक वुमेन राइडर भी रखी है ना, वो सो हैप्पी कि चलो वुमेन राइडर का क्या हुआ, जो जितने भी मेल राइडर्स हैं ना उन्होंने उसको कहना शुरू कर दिया हम तुम्हारा भी ले लेंगे। बैठ के सब बातें होती थी, जब मैं कैमरे में देखती थी डीप फ्रीजर में बैठे बातें हो रही होती थी। एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि भाई अपने आप को खुद सीरियसली नहीं लोगे तो फिर कोई नहीं लेगा। तो फिर मेरा इतना मेल ओरिएंटेड है, बिकॉज ज़्यादातर मेरे हेल्पर्स और डिश वॉशर्स है सारे, मैं मेड्स नहीं रख सकती, तो वो राइडर्स, तो मेरा बहुत ज़्यादा मेल ओरिएंटेड है। तो अब मुझे अभी भी एट टाइम्स फील होता है कि कभी अगर मैं उनको डांटती हूँ उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है और उनकी ईगो हर्ट होती है, और उनको लगता है मैं जैसे पेटीट सी हूँ एंड इस तरह से हूँ, उनको लगता है ये लड़की हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है। तो वो मुझे लगता है कि दे डोंट टेक मी अप, तो दे डू, दे बट इट्स बीन अ होल फाइट ऑफ योर ओन। नॉट ओनली दैट, मुझे याद है मेरा वन ऑफ माई बिगेस्ट सप्लायर्स, माई मीट सप्लायर्स, हम ना अभी बल्कि अभी ही मैसेज में वाला वैसे है, तो हम लाइक ऑब्वियसली मीट वगैरह हमारा क्रेडिट मंथली चलता है। जब मैंने पहली बार से गोश्त लिया और उसके बाद में मैंने 2-3 दफ़ा लिया, तो आई थिंक 3,000 रुपये या कुछ का बैलेंस था। एंड उस वक्त माई फादर बिकेम रियली अनवेल, वो ICU चले गए। अच्छा, अगले दिन ईद थी, आई रिमेंबर वो गोश्त वाले का बेटा ICU में आया, ही सेड कि वो लेने में, कहा मैं तो यहाँ शिफा में हूँ, आप यहाँ आ जाएँ। वो शिफा में आया एंड ही सेड, एंड व्हेन ही सॉ कि मैं ICU से निकलूँ, वो पढ़ा लिखा था, तो ही सेड आई एम सो सॉरी बट अब्बू ने भेज दिया है, बट कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं आप लो 3,000। आज हमारा 5 से 6, बल्कि अभी आज हम टॉकिंग टू 5 से 6 लाख का महीने का क्रेडिट चलता है, और वो हम पे करते हैं, और वो कुछ नहीं कहता, बिकॉज अब ही नोज। और उस वक्त वो 3,000 का भी 2 दिन का क्रेडिट के लिए उसने अपना बेटा वहाँ भेज दिया था। तो that's what I'm talking about. अब वो मैडम चाय पियेंगी, and they're all like family now to me, but this happens. This happens. So you said कि seriously नहीं लेते थे, अब लेते हैं। बीच में आपने कहा कि वो you don't have to raise your voice, you don't have to act that way to be taken seriously. How do you think that has happened? Because मुझे लगता है कि ना बहुत सारी औरतों को हमारी सोसाइटी में जब तक वो चीखें चिल्लाएं और एक ड्रामा ना करें और जिस पे उनको क्रेजी कहा जाता है, उनको सीरियसली लोग नहीं रहते।
you know, एक ड्रामा करना पड़ता है जिसके बाद लोग कहते हैं मैडम मीन्स बिजनेस एंड लेट्स टेक हर सीरियसली. सो डू यू थिंक दैट यू हैड टू डू दैट और हाउ डिड यू, या फिर इनफ विद यू नो ओवर टाइम दे नहीं अंडरस्टूड ऑन देयर ओन? नहीं. और दूसरा ये है ना, मेरी हमेशा से आदत है, मैं काम पे फोकस करती हूँ. ठीक है, अगर किसी को जल्दी घर जाना है, अगर किसी को 4 छुट्टियाँ करनी है, 6 छुट्टियाँ करनी है, मैं कहती हूँ पूरा हफ्ता छुट्टी कर लो, लेकिन ये काम है, ये होना चाहिए. मैं स्कूल नहीं चला रही हूँ कि सुबह 8 बजे आओ और 3 बजे रुको. मेरे लोग पता है टाइम्स ईद पे रात को 4-4 बजे तक हम काम कर रहे होते हैं. इवेंट्स होते हैं, हम पूरा रात नहीं जाते हैं घर. ठीक है, और एट टाइम्स वो मुझे फ़ोन करते हैं कि अभी तबीयत सही नहीं है. मैं कहती हूँ अच्छा BP लो कर घर चले जाओ. कोई बात नहीं. सो ये इससे भी होता है. और मैं आई मीन बिजनेस के मुझे अपना काम चाहिए, मुझे ठीक है डिसिप्लिन एक होना चाहिए. जैसे मैं कह रही हूँ कि कुछ सर्टेन रूल्स हैं, हेयर नेट्स होनी चाहिए हर काम की अपना. हो सकता है आपका टाइम ओरिएंटेड काम हो तो आपके लिए टाइम की इम्पोर्टेंस हो. मेरा टाइम की इम्पोर्टेंस है, बिकॉज मेरा खाना सर्टेन टाइम पे जाना होता है. लेकिन मैं सारी इम्पोर्टेंस रखती हूँ कि इस टाइम पे खाना चला जाना चाहिए. अब तुम कितने बजे भी आओ, ये ऑर्डर्स हो जाने चाहिए, तुम कितने बजे भी आओ. ठीक है, एंड प्लस बीइंग देयर फॉर देम एज अ फैमिली. हम इवन देखिए, मेरे पास जो तबका काम कर रहे हैं ना, आपके पास पढ़े लिखे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेरे पास ज़्यादातर कर रहे हैं they're from a different class है. हम एक एनुअल डिनर रखते हैं, एनुअल लंच रखते हैं, हम ईद पे लाइक यू नो ईद गिफ्ट्स देते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं. मेरे बेटे की बर्थडे होती है, हम वहाँ जाके मनाते हैं किचन में, ट्रीटिंग देम लाइक योर फैमिली. ठीक है, तो उससे भी हर चीज़. So basically you're saying कि earn that respect in a respectful way. You don't demand that sort of respect, right? एंड मेरा तो अब सीधा है, कुछ चीज़ होती है मैं पैसे काटती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अच्छा, ठीक है, देखो मुझे काम चाहिए, नहीं करोगे बेटा एंड ऑफ द डे मैं बिजनेस चला. इट्स ऑल फेयर. सो सी दिस, ये जो बैलेंस है ना, बिकॉज यू नो चीज़ चलाने से क्या होता है, हीट हो जाते हैं. आप अपने जितना छोटा है, यू नो योर सन, इफ यू विल स्टार्ट शाउटिंग, एक दफ़ा वो शायद डर जाएगा, रोएगा, बाकी हो गएगा वो शी डज इट एंड देन शी बिकम्स ओके. एंड इवन अ बेबी कैन you know see through that. So that finding that balance, because you know like मैं मेरी जो position है यहाँ पे, you know I run this office. So you know you want to be nice, you want to have that relationship, लेकिन वो फिर boundary set करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि you know like but you still need to remember that I am the boss. Yeah and I am the boss. ठीक है, I will be there for you, but end of the day I'm running a business. And you आपने अपनी हलाल करनी है कमाई for me as well. जी बिल्कुल. तो फिर वो पता है क्या होता है, आप बंदे ही वो रखते हो, मेरे पास वो चल ही नहीं सकता जब बिल्कुल. पहले मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी ना, जो मैं पहले भी कह रही थी दैट आई कांट से नो. मैंने लोग रख लिया, वो नहीं भी चल रहे हैं तो मैं चलाए जा रही हूँ. I know this. नहीं अच्छा रमज़ान है, नहीं अब वो ज़रूरतमंद है, नहीं अब उसके घर में प्रॉब्लम है. देन आई सेड यार मैं भी बेवा हूँ, मेरा बच्चा भी यतीम है, मतलब सॉरी फॉर दिस बट इट इज़. सो एंड ऑफ द डे काम होगा तो होगा. यू हैव टू लुक आउट फॉर योर सेल्फ एज वेल. मतलब अगर आपको किसी की वजह से आपको हिट पड़ रही है तो यू नीड टू लुक आउट फॉर योर सेल्फ. तो बस फिर आपका एक सर्टन तरह के लोग हैं जो मेरे साथ काम कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं. मैं प्रेशर के अंदर जब होती हूँ तो देन दे ऑल्सो नो कि इस वक्त मैडम प्रेशर में है. नो आई कम्प्लीटली गेट दिस थिंग, क्योंकि आई हैव हैड समबडी वर्किंग फॉर मी जिसकी आउटपुट और प्रोडक्टिविटी से मैं आई एम नॉट हैप्पी, यू नो लॉट्स ऑफ डिलेज, छुट्टियाँ, ये वो एट्सेट्रा. बट पहले कुछ हुआ, फिर फादर की डेथ हो गई, फिर बहन का कोई मसला हो गया. सो इट्स जस्ट लाइक यू नो आई कीप डिले. फिर बहन की शादी थी तो उसके लिए पैसे चाहिए थे. आई एंडेड अप गिविंग मोर मनी. क्या ठीक है, यू नो बहन की शादी करा लो, फलाना कर लो. तो यू नो उल्टा ही होता है, बिकॉज वो चीज़ यू नो इट रियली प्लेज ऑन योर गिल्ट कि यार अच्छा नहीं, अभी अबू की डेथ हुई, अभी तो उसको ज़रूरत है, ये है वो है. इट्स अ वेरी. आप काम कर रहे हैं ना. नहीं काम नहीं, जो नहीं कर रहा फिर उसके लिए लेकिन फिर उसको भी सीखना है ना. सीखना है. आगे जाके जितना इवेंचुअली ये हुआ था कि मैंने कम्युनिकेशन की थी. मैंने कहा आप मुझे बहुत मुश्किल पोजीशन में डाल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मुझे आपके हालात पता है. ठीक है, लेकिन आपको भी अपने हालात पता है ना, तो आप काम ठीक से क्यों नहीं कर रहे? अगर ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए ना. आपको इस बात की रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रही भाई
कि आपके हालात भाई, खराब मैं हैं तो छोटी डू योर वर्क. एग्जाम्पल बताती हूँ. कोविड हुआ है ना, तो उस जमाने में हमने अपनी पूरी राइडर्स की टीम चेंज की थी. अच्छा. तो हमारे पास बहुत सारे लोग इंटरव्यूज़ के लिए आ रहे थे. फिर एकदम से हमने राइडर्स रख लिए. तो मेरे पास एक आया बंदा एंड ही सेड कि मैडम 3 दिन से मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे छोटे बच्चे हैं, कोविड हुआ हुआ है और मैं समोसे बना सकता हूँ और मेरा तो समोसे वाला काम नहीं है. सो आई टोल्ड हिम, आई सेड देखो समोसे तो यहाँ नहीं बनते और हमारे पास है, हमें डिश वॉशर की ज़रूरत है और वो समोसे से डिश वॉशर होना. एंड ही सेड कि अच्छा मैं इतने आप दे देंगी. उस वक्त आई रियलाइज़, मैंने कहा मैं कैसे इसको दूंगी. फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम ये करोगे और अगर मेरा रिस्क लगा रहेगा मैं कर दूंगी. ऑलमोस्ट अब 2 years हो गए और वो आज भी डिश वॉशर, अब वो हेल्पर पे आ गया है डिश वॉशर से. ठीक है, लेकिन उसको ज़रूरत थी ना, तो वो करता And he knew था. that this is something he needs to do and उसने take ये नहीं कहा मैं तो seriously. वहाँ समोसे बनाता था, यहाँ मैं क्या बर्तन धोऊंगा इनके, वही मैं कह यहाँ रही मैं हूँ कि- पोछा लगाऊंगा. हाँ. बट मैं तो अपना खुद भी पोछा लगा लेती हूँ, मैं खुद भी बर्तन धो लेती हूँ. माई पीपल नो. सबसे अच्छा एक ये भी है कि जो भी बिजनेस करें ना, वो आपको खुद भी आना चाहिए. हर चीज़ आनी चाहिए. आपको अपना नैक होना चाहिए. उनको पता है कि अगर हम नहीं होंगे ना, ये खाना बना के खुद कर लेंगी. एक चीज़ होती है कि पार्टनरशिप. अच्छा जी, आई हैव नो आइडिया अबाउट फूड और आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस डिजिटल थिंग, और मैं कहूँ ओ माई गॉड हम ना सो सक्सेसफुल. सो कल जाके ना मुझे भी अपना वो जगह है मेरे पास, मैं 4 लाइटें लेती हूँ, ऐसे माइक लगाती हूँ और मैं भी इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर बन के ना पॉडकास्ट शुरू कर देती हूँ. आई एम श्योर आई विल बी नॉट सक्सेसफुल एट ऑल. कैमरे का एंगल में वैसे मैं सोच रही थी, मैंने कहा माई गॉड, यू नो हम तो एक, मुझे तो पता है इंस्टा पे जो मैं वीडियोस अपने खाने की बनाती हूँ, मुझे वो बनानी नहीं आती. मैं तो कैनवा पे पोस्ट बनाने में कुछ 4 घंटे लगा देती हूँ. तो जिसका काम उसी को सांझे, हाँ खाने का मुझसे कुछ भी करवा लो. तो आपको जो भी बिजनेस, अब बहुत मैं हेयर कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ बट आना चाहिए. तो फिर भी आपको लोग सीरियसली लेते हैं. यू नो योर वर्क. सो देन लाइक यू नो, इवन इफ आई से कि नहीं ये सही नहीं है, तो यूल से भाई मुझे पता है अपना काम, चुप रहो. लेकिन अब आप ही श्योर नहीं हो तो आप कहोगे यार शायद सही कह रही है. You should know your thing and then get into it. Yeah, and then Whether people it's will anything. know that as well. Exactly. So how many years to Basil Pantry now? 4 years, alhamdulillah. Wow. Yeah, hitting the 5-year mark eventually, then that's a big milestone. hope हाँ. it goes No, it's really nice. I'll put it out there. एक मेरे customer review दे दूँ. You know, I've been taking your platters. मैं अपनी हर चीज़ पे वो मंगवाती हूँ. अगर कुछ भी मैं घर पे रखूँ तो it's really good. You're doing such a great job. It's one of its kind. पता चलता है. पता चलता है. It's there in everything that you do. The way things are placed and done, taste wise, everything. So good luck to you. बहुत अच्छा आपका काम जा रहा है. I hope and wish you more and more success. Thank you. पता ही नहीं लगा. You said it will be a long one. बोल 1 घंटा हो गया. Really? We are 1 hour 7 minutes into Oh the my God, conversation. But it was a lovely conversation. Very engaging throughout. Your story is quite inspirational. The things that you said, a lot to learn from them. Very insightful. And I'm sure that a lot of people जो ये सुन रहे हैं इस वक्त, बहुत कुछ उन्होंने इससे लर्न किया होगा. हाँ. I'm still learning every day. Life is all about learning. But And thank you once again for inviting me. नहीं, my pleasure. I hope I get to see the baby. हाँ, He's the maybe main- देखते हैं. He's the main वो Incentive. Yes. चले, thank you so much for tuning into this episode of Happy Chirp. I hope कि आपको मज़ा आया हो इस conversation में और आपने कुछ learn किया हो. Please don't forget to like and subscribe to the channel, and also please leave your comments about what you think about this entire podcast. Thank you so much, and Allah Hafiz.